A very good morning to all of you out there. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट योर सी एस एग्जीक्यूटिव प्लानिंग फॉर दिसंबर 2026. This video is not going to be very common video. It is going to be different. It is going to be, we are going to have a different approach towards it. Different approach क्यों लगता है यहाँ पे? Because see, I will not be talking about कि how to get a rank, how to get 60 plus in all the subjects and all that. Now, this planning is for all the damage control students who want to clear their examination for December 2026. I'll be very practical with all of you. First of all, I'll be telling you some different approaches that you should apply into your preparation, and then you'll be able to clear the examination. Okay? Now, if you follow this entire guidance, what I'm giving you over here, then you will be able to crack this examination in December 110%. Okay? Provided that for this 3 months you have to remember what guidance I'm giving you over here. Take out your pen and paper, note it down, keep it with you and follow it. That's it. Understood? I am not going to talk like a teacher, but I'm going to talk like a elder brother or a friend. Accordingly, I will be talking about all the problems that you may face, all the escape route that are there, and accordingly you have to apply it in your preparation. Okay? Now, first of all, understand this. We will talk about the time that we have in our hand. How much time do we have in our hand? We have September month. Okay? We have September month, we have October month, we have November month, and then December month. This video may be a little bit longer, so have patience and watch the entire video and share it with your friends. Okay? September month, October month, November month, December month. Now, there are several students who are thinking about giving both the module, and there are some students who are giving single module. Now, there are some students who are also in a dilemma. Should they give both module or single module? That is the question. Okay? Now, if you are someone who has given both module earlier, okay, but could not crack the examination, okay, in some paper you may have got, for example, the subjects that we have over here is company law, JIGL, SBL, CFM. ठीक है? For example, आपको company law में 50 मिला है, JIGL में 50 मिला है, SBIL में 50 मिला है, CFM में 7 मार्क्स मिल चुका है. ओके? अकॉर्डिंगली मॉड्यूल 2 अगर हम लोग देखें तो मॉड्यूल CMSL में फॉर एग्जांपल यू गॉट 50, ECIPL में यू गॉट 50, टैक्स लॉ में यू गॉट 8. और इफ आई कैन टेल यू अ रियल रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, CMSL में 8 मार्क्स मिला है, टैक्स लॉ में पकड़ लो 30 मिला है, 32 मिला है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है? इन बोथ द केसेस यू आर फेल. ठीक? अब बात ये है कि तुम इस डायलेमा में हो कि मुझे बोथ मॉड्यूल देना है या फिर सिंगल मॉड्यूल देना है इन दिसंबर अटेम्प्ट. ठीक है? नाउ दिस इज कंप्लीटली अपॉन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट कि वो कितना प्रेशर ले पाता है एंड कितना वो करने के लिए तैयार है. क्या इस रिजल्ट के साथ हम लोग बोथ मॉड्यूल के लिए जा सकते हैं? आंसर है यस, यू कैन गो, बट ओनली 1% स्टूडेंट विल बी एबल टू क्रैक बोथ द मॉड्यूल. इस रिजल्ट के साथ जो आपको जून का रिजल्ट आया है आपका, 1% स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रैक इट. ठीक है? सेफर साइड के लिए मैं अगर बताऊं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है? अगर आप एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हो और आप पता है आपका जगह कहाँ पर है, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है, कि मैं यहाँ पर हूँ. नाउ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल, देन आई वुड सजेस्ट यू सिंगल मॉड्यूल के साथ जाओ. अगर बोथ मॉड्यूल दे दे के आपका नहीं निकल रहा है, डोंट स्टिक विद इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स. Go for single module. That is my suggestion for the students who have already given both module and then thinking in a dilemma कि both module देना है या फिर single module देना है. Understood? The key for both the module is कि अपने को ना equal importance देना है हर एक पेपर को. Now it may be company law, JIGL, SBIL, CFM. If you look into this result, you will understand कि बच्चे ने CFM में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं उन्होंने. ठीक है? एंड दे थॉट कि मैनेज हो जाएगा, यहाँ से थोड़े मार्क्स वहाँ, वहाँ से यहाँ करके मैनेज हो जाएगा. ठीक है? बट दे कुड नॉट मैनेज. एग्जामिनेशन में आपको 7 मार्क्स मिला यहाँ पे. ठीक है? अनटिल एंड अनलेस यू गेट 40 मार्क्स,
के ऊपर इन दिस वीक सब्जेक्ट CFM इन दिस केस, और इट मे बी कंपनी लॉ ऑल्सो, मैनेज करने का बात होगा ही नहीं यहाँ पे। मैनेज तब होगा जब आप हर सब्जेक्ट में 50 के ऊपर लेकर आ रहे हो, एंड एक सब्जेक्ट में आपको 40 के ऊपर मिला है, एंड किसी एक सब्जेक्ट में आप 53, 54, 55, तो ये मैनेज हो जाता है। ठीक है, आपको जो अग्रीगेट चाहिए होता है ना, वहां पे मार्क शेयरिंग हो जाता है दोनों ग्रुप का, एंड अग्रीगेट निकल जाता है आपका। अंडरस्टूड? एग्रीगेट इज हाउ मच, 200 मार्क्स फॉर मॉड्यूल 1 एंड 150 मार्क्स फॉर मॉड्यूल 2, ये होता है आपका अग्रीगेट। अंडरस्टूड? नाउ इफ कोई किसी पेपर में आपको 50 मिला, 50 मिला एंड देन 40 मिला, आपका एग्रीगेट रीच नहीं हुआ है, 140 आपका यहाँ पे टोटल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फेल हो। अंडरस्टूड? इवन दो यू हैव क्रैक द एग्जामिनेशन, 40 पास मार्क है, लेकिन फिर भी आप फेल हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल JIGL आपका बहुत फेवरेट है, ECIPL बहुत फेवरेट है, जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इनमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो वीक पेपर है आपका, फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉ ओवर हियर और CMSL ओवर हियर, ये आपका जो है बाकी सब्जेक्ट्स कवर अप कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स तब कवर अप करेंगे जब आपको 40 के ऊपर मिल रहा है इस पेपर में। अगर 40 के ऊपर मिल ही नहीं रहा है तो कैसे कवर अप होगा? अंडरस्टूड? गॉट इट? तो 40 मार्क्स इज द, अगर कोई सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, बहुत ज्यादा वीक हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे को तो कम से कम 40 उसमें लाना ही है। और इफ यू आर नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट्स, तो आप 40 के ऊपर लेकर नहीं आ पाओगे। मैं सिंपल आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? अगर आप एग्जामिनेशन में किसी भी पेपर को 80 मार्क्स आप अटेंड कर रहे हो उस पेपर का, ठीक है, 80 मार्क्स आप फुल शॉट श्योरली अब आराम से लिख के आ पा रहे हो, तब जाके उस पेपर में आपको 50 मिलता है। इफ यू आर थिंकिंग कि मैंने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किया है एंड आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, दैट इज अ फॉल्स होप दैट यू आर हैविंग। ठीक है, तो यू हैव टू बी गुड इन दैट पेपर। 80 मार्क्स इट इज एवरेज। 80 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करके आप आ रहे हो, तो ये एवरेज है। अगर आप 90-95 अटेम्प्ट करो, देन यू आर गुड, अटेम्प्टिंग इट गुड। ठीक है, तो आपको फोकस्ड ये रहना कि आपको जो वीक पेपर है उसमें भी आपको कम से कम 80 मार्क्स, 75 टू 80 मार्क्स आपको अटेंड करके आना ही है। एंड फॉर अटेंडिंग 75 टू 80 मार्क्स यू हैव टू बी गुड इन दैट पेपर, एटलीस्ट एवरेज इन दैट पेपर। ठीक है, हम लोग ना आज के सेशन में एक एक पेपर का कमजोरी, एक एक पेपर का जो प्लस पॉइंट है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने बात किया है फॉर दो स्टूडेंट्स हु गेव बोथ द मॉड्यूल्स बट आर इन अ डिलेमा कि हमको अभी दिसंबर अटेम्प्ट में बोथ देना है या फिर सिंगल देना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाऊंगी फॉर ऑल द पेपर्स, देन आप गो फॉर बोथ द मॉड्यूल। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं, बोथ द मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, मैं रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं कंप्लीट हो पाता है, देन गो फॉर सिंगल मॉड्यूल। एंड गोइंग फॉर सिंगल मॉड्यूल, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, गोइंग फॉर सिंगल मॉड्यूल इज नॉट अ बैड थिंग। आपको पास करना है। अंडरस्टूड? रैंक डज नॉट मैटर करता है। I know you're working for rank, but if you're working for the last 3 to 4 attempts for a rank and you're not being able to crack the examination, then rank कहाँ से मिल जाएगा आपको? तो then you have to understand कि मेरा position कहाँ पे है, accordingly you have to switch to single module. I hope it is clear for those students who wants to give both the modules for December 2026. Now for those students who wants to give single module for December, जो सिंगल मॉड्यूल आपने दे रखा है फॉर जून, ठीक है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू गिव बोथ द मॉड्यूल्स फॉर दिसंबर, तभी जाओ बोथ द मॉड्यूल्स फॉर दिसंबर। अगर आपका जो सेकंड मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 है यहाँ पे, मॉड्यूल 2 है यहाँ पे, मॉड्यूल 1 आप फेल हो चुके हो, मॉड्यूल 2 आप सोच रहे हो कि मेरे को मॉड्यूल 2 देना है, एक साथ दे देना है, तभी आपको जाना है जब आपका मॉड्यूल 2 का अब तक 70% सिलेबस कवर अप हो चुका है। एंड यू नो इट इज नॉट कि मैंने सिर्फ लेक्चर देखा है, ऐसा नहीं। अगर आपका 70% सिलेबस आपको आता है, देन गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में शायद आपने प्रिपरेशन किया होगा, राइट? देन यू आर, आपका कम से कम 60 to 70% आपका हो रखा है। अगर ऐसा हो रखा है सेकंड मॉड्यूल में, देन गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, देन डोंट गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, ये है गुरु मंत्र मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? अनकंफर्टेबली लगेगा, अनसेटलिंग लगेगा, आपको सोच रहा होगा कि यार सर मैंने तो प्लान किया था बोथ मॉड्यूल दूंगा। प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन हकीकत में रह के प्लानिंग करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा डायरेक्शन, मेरा जो काम है वो ये है कि आपको डायरेक्शन दूं,
एंड आई हैव टू लेट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर प्लेस, यू हैव टू एनालाइज दैट, ठीक है, अकॉर्डिंगली गो फॉर इट। क्योंकि अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लगते जाना इट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको फोकस करना है एग्जामिनेशन क्लियरेंस के ऊपर, अंडरस्टूड। तो ये क्राइटेरिया रहेगा फॉर द सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स। अगर आपका सेकंड मॉड्यूल का 70% पेपर अब तक कंप्लीट हो चुका है देन गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। एंड सिर्फ यही नहीं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मैं बोथ मॉड्यूल कर लूंगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एक दिन का भी गैप नहीं मिलेगा फॉर बोथ द मॉड्यूल स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन देना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं वो प्रेशर ले पाऊंगा। एंड वो प्रेशर को प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट देना। तब जाके आपको एनालाइज होगा कि मैं, अगर मेरा रोज एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्या मैं वो प्रेशर हैंडल कर पा रहा हूँ, क्या मैं रिवीजन कर पा रहा हूँ, क्या मेरा ब्रेन सेटल्ड है। ऑल दिस थिंग, दिस इज नॉट 11-12 का एग्जामिनेशन कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप टेस्ट करोगे, नहीं। टेस्ट करना है एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट देकर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो सिंगल मॉड्यूल देना है, बोथ मॉड्यूल देना है, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको विद इन दिस 10 मिनट्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको कुछ जानना नहीं है, इसके ऊपर आपको कुछ सोचना नहीं है। जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो अगर रीच कर पा रहे हो देन गो फॉर इट, ठीक, अकॉर्डिंगली प्लान फॉर इट। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे पेपर्स को। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं CFM एंड टैक्स लॉ। जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में इन द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द टीचर्स में भी। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू क्रैक CFM एंड इट इज वेरी इजी टू क्रैक टैक्स लॉ एज कंपेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स। ये है तुम्हारे अदर सब्जेक्ट्स। क्यों इजी है मैं तुमको बताता हूं। आप CFM एंड टैक्स लॉ, यू आर इन कंपनी सेक्रेटरी, यू केम इन टू कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज यू फियर सम, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स फियर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई यू केम इन टू कंपनी सेक्रेटरी, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू केम हियर बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स फियर प्रैक्टिकल्स, दे थॉट कि यार थ्योरी कर लेंगे, थ्योरी थ्योरी कर करके एग्जामिनेशन निकाल लेंगे, ठीक है। सो ये फियर आपको इन पेपर्स को प्रिपेयर करने से रोकता है, प्रॉपर प्रिपरेशन करने से रोकता है इन पेपर्स का। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। CFM एंड टैक्स लॉ की एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका आंसर भी करेक्ट नहीं है ना, आंसर को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ यू आर गोइंग थ्रू द स्टेप्स, क्या आपको स्टेप्स पता है उस आंसर के, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या वो कंसेप्ट पता है आपको, दैट इज द मेजर थिंग। अगर वो तुमको पता है ना, 50 के ऊपर मार्क्स लेना इट इज अ पीस ऑफ केक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज अ वेरी very very easy to get 50 marks above in CFM and tax law if you only know the steps properly, you know कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ड्राफ्ट करना प्रॉपर्ली। आंसर भले ही एक भी आंसर तुम्हारा करेक्ट ना हो, मतलब फाइनल आंसर जो होता है ना वो एक भी करेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी तुमको मार्क्स मिल जाता है। दैट इज हाउ इजी CFM एंड टैक्स लॉ इज। लेकिन तुम्हारा फेयर क्या है? तुम्हारा फेयर ये है कि ये प्रैक्टिकल पेपर्स है एंड मेरे को ये पसंद नहीं है, इसलिए आप ध्यान नहीं देते। पता है CFM एंड टैक्स लॉ में आपको 100% सिलेबस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 70% सिलेबस के साथ भी तुम चले जाओ एंड कीपिंग दिस इन माइंड कि तुम्हारे आंसर्स भी करेक्ट नहीं है, फिर भी तुम पास हो जाते हो इन पेपर्स में। दिस इज हाउ इजी इट इज। मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने रिजल्ट देखा है इन द पास्ट 1 डे एंड सब में यही प्रॉब्लम है कि यू हैव अ फियर ऑफ दिस पेपर। तुमको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत डालना पड़ता है बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल एंड दैट्स वाई यू डोंट लाइक टू प्रैक्टिस दिस पेपर्स। अगर आप CFM एंड टैक्स लॉ में फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ईच चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स बनाओ, यही तुमको एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करके जाना पड़ेगा। प्रीवियस टर्म देखो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में उनका प्रैक्टिस करो, नॉट जस्ट फिल्थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, इजी इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तुम बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हो तब इजी क्वेश्चंस करो एंड देन स्लोली मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तुमने मैराथन देख लिया, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। मैराथन में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते दोस्तों। तो आपको ये सोचना है कि सिर्फ मैराथन देख के इजी क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनेशन में जाएंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअली हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यू वुडंट बी एबल टू क्रैक इट। तो रियलिटी में रहो। सबसे पहले CFM एंड टैक्स लॉ में तो कम से कम वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो एक्चुअली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो रहे हैं, क्वेश्चंस को समझना कि अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन। यू हैव टू पुट योर टाइम एंड एफर्ट इनटू दिस पेपर, ठीक है। अगर थोड़ा एफर्ट डाल रहे हो ना तब भी ये पेपर्स निकल जाते हैं दोस्तों, आई प्रॉमिस यू। आपको ये देखना है कि कौन से वो चैप्टर्स है जिनमें
हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो। अगर 16 चैप्टर है ना, 16 चैप्टर में से अगर आपने 9 से 10 चैप्टर भी प्रैक्टिस करके चले गए, द टॉप मोस्ट चैप्टर्स, देन ऑल्सो यू विल पास द एग्जामिनेशन विथ एग्जामिशन 60 के ऊपर आ जाता है। और यहाँ तो मैं बात करूँ सिर्फ 50 के ऊपर लाना। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो इससे डरो मत, सीएफएम से मत डरो, टैक्स लॉ से मत डरो। यूट्यूब पे जाओ, इतने सारे हजारों डिस्पोजेबल, तुम्हारे डिस्पोजल पे इतने सारे रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज करो। इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम देन इट इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है? नाउ ऐसा कुछ नहीं होता फेवरेट टीचर, फेवरेट यू नो इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट। यू शुड नॉट डेवलप। मैं तुमको एक रियलिटी बता देता हूँ, तुम इमोशनल अटैचमेंट किसी भी टीचर के साथ ना इमोशनली अटैच्ड मत हो जाओ। क्योंकि अगर तुमने इमोशनली अटैचमेंट ला दिया विथ अ टीचर, तो तुम वेट करते रह जाओगे कि कब वो टीचर वो वीडियो लाएंगे, तब हम लोग वो वीडियो करेंगे, इन्हीं से करेंगे। ये इमोशनल अटैचमेंट का जो गेम है ना, इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है? हजारों टीचर्स है यूट्यूब के ऊपर, चेक करो किस टीचर ने कौन से वीडियो करवाया है, उसको करो, ठीक है? जो भी आपको समझ में आ जाए, रैंडम टीचर्स का देखो, जो भी समझ में आ जाए उसका करो, कंप्लीटली करो उसको, ठीक है? समझ समझ के, बिकॉज एवरी टीचर इज नॉट गुड इन एवरी फील्ड, मैं तुमको ये बता देता हूँ, ठीक है? तो सीएफएम के बहुत सारे टीचर्स है, टैक्स लॉ के बहुत सारे टीचर, सबका देखो, जिसका आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए एंड जल्द से जल्द आपको कंप्लीट हो जाए वो चैप्टर, वहां से कर लो। 3 मंथ्स इज नॉट अ टाइम कि आप वीडियो लेक्चर्स जो है ना फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करोगे। कोई टीचर अगर ऐसा है जो 16-16 घंटा ले रहे हैं क्लासेस फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, स्किप कर दो। उस टीचर से तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव 1 year टाइम टू कंप्लीट योर लेक्चर्स, यू हैव ओनली 2 months टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? उसके बाद तो तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस लगाना है। तो इन 2 महीने में आप एक्सप्लोर करो, रिसोर्सेज को जुगाड़ो अच्छे से, एंड देन अकॉर्डिंगली तुम अपने गोल्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखो, अपने अटेम्प्ट के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखो, अपने जो ड्यूटी है उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट रखो, ना कि टीचर्स के साथ। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है? इवन आई एम अ टीचर, बट मैं फिर भी ये बताऊंगा आपको, अंडरस्टूड? नोबडी विल टेल यू एंड यू विल, अगर तू बहुत नई हो ना, तुम लेटर जाके रियलाइज करोगे सर ने तो सही बताया था, ठीक है? तो इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, बी इमोशनल अटैच टू योर गोल्स, अंडरस्टूड? कंप्लीट दिस चैप्टर्स। कोई टीचर अगर आपने किसी से क्लासेस ले रखा है जिसने कंपनी लॉ में एक चैप्टर का 16 का क्लासेस, 16 क्लासेस है एक चैप्टर का, यू डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट दिस, ठीक है? यू हैव टू गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर अ वीडियो लेक्चर, एक देखो पसंद नहीं आया, दूसरा देखो पसंद नहीं आया, तीसरा देखो। भले ही इस वीडियो में व्यूज ना रहे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कंप्लीट करवा देते हैं। हमारे ही वीडियो लेक्चर्स को देख लो, बिकॉज वी डोंट हैव अ वेरी बिग मार्केटिंग टीम, हमारा व्यूज बहुत ज़्यादा कम आता है, लेकिन इतने सारे लेक्चर्स है जो आपको इजीली समझ में आ जाता है। फॉर कंपनी लॉ, जेआईजीएल, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हम लोग कंप्लीट करवा देते हैं। तो हमारा देखो, समझ में नहीं आए तो किसी और का देख लो, लेकिन देख देख के कंप्लीट कर लो, अपने गोल्स को कंप्लीट करो, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है? दैट इज द थिंग यू शुड कीप इन माइंड, अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर नाउ। देखो समझो एक चीज, कंपनी लॉ, जेआईजीएल, एसबीआईएल, सीएमएसएल, ईसीआईपीएल, इनमें से जो हमारा जेआईजीएल है एंड ईसीआईपीएल है, इट इज अ इजी पीजी सब्जेक्ट। इनमें आपको मार्क्स स्कोर करना वेरी इजी हो जाता है। यू डोंट हैव टू वरी कि मेरे को बुक में जो लिखा है एग्जैक्टली डिट्टो मेरे को रट्टा मार के निकालना। अगर रट्टा मार के निकाल रहे हो तो तुमको तो रैंक मिल जाएगा, क्योंकि टीचर्स जो है ना, वो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनके डिस्पोजल पे होगा ना, चेकिंग साइट पे उनके पास पेपर है, वो चेक करेंगे, तुमने तो यार एग्जैक्टली लिखा है, तो फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक है? तो अपने को फोकस करना, क्या तुम रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा माहिर हो? अगर नहीं हो, देन अंडरस्टैंड, ये क्रैक करना इतना इजी है कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड पुट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। अगर तुम अपने ही भाषा में लिख रहे हो उसको अच्छे से, एंड लेकिन टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे पा रहे हो एग्जैक्टली हाउ इट इज इन द मटेरियल, टॉपिक सही है, तुमने एक्सप्लेनेशन सही डाला है, भले ही उस वर्ड्स को यूज नहीं किया है जो मटेरियल में है, लेकिन तुमने समझा दिया है टीचर को, जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है तुम्हारा पेपर, उसको तुमने समझा दिया है, देन बी रेस्ट अश्योर्ड तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, अंडरस्टूड?
ये है चीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वो रट्टा मारने में बिजी हो जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है उनको रट्टा मारने में। अंडरस्टैंड द टॉपिक, पुट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। और ओन वर्ड्स में पुट इट डाउन कैसे करना है, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हैबिट बनता जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत टाइम तुम्हारा कलम नहीं चलता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से लिखे, क्या लिखे, समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज यू हैव नॉट पुट एफर्ट्स इनटू राइटिंग प्रैक्टिस। तुम घर में प्रैक्टिस ही नहीं किए, तुम एग्जामिनेशन में सोच रहे हो कि लिखना कैसे है, दिक्कत हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। कंपनी लॉ का सेक्शन लिस्ट मैंने अवेलेबल करवा रखा है हमारे वेबसाइट के ऊपर, वहां से डाउनलोड करो। इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस को अच्छे से कर लो, ठीक। क्योंकि 60% क्वेश्चन जो है वहीं से बनेगा। कंपनी लॉ में इतना श्योर रहता हूं मैं हमारे सजेशंस के साथ। एंड जैसे तुम्हारा हो जाए कंपनी लॉ, ठीक है, सेक्शंस, उसको राइट डाउन करो प्रॉपरली। एंड सेक्शन तभी कोट करना है आंसर पेपर में जब तुम श्योर हो कि हाँ मैं ये जो है 77 वाला सेक्शन है, ये 80 वाला सेक्शन है, ये 96 वाला सेक्शन है, एजीएम के बारे में पूछा जा रहा है, 100 के बारे में पूछा जा रहा है, ईजीएम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑल दिस थिंग्स जब तुम श्योर हो तभी कोई जो है सेट करना है। श्योर नहीं हो कैसे करना है उसके मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, कंपनी लॉ इट्स ए वेरी इजी। जीआईएल में अपनी भाषा में लिखो, एसबीआईएल एंड कंपनी लॉ आर ट्विन ब्रदर्स। तुम जब एसबीआईएल देने जाओगे तब लगेगा कंपनी लॉ ही लिख रहा हूं। तो एंड पार्ट्स, जो सब्जेक्ट जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडरस्टैंड कि कौन से पार्ट में ज्यादा मार्क्स है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे कम चैप्टर्स है, ज्यादा मार्क्स है, उनको कवर करो सबसे पहले। अपना प्रिपरेशन ऐसे बनाओ जैसे कि तुम्हारे जो हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर्स है वहां से तुम स्टार्ट करो। अंडरस्टूड? करेक्ट? दैट इज द थिंग, दैट इज द गोल फॉर ऑल दिस पेपर्स, ठीक है। ऐसे करके तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। अब देखो, टाइम अलॉटमेंट को समझो। सिंगल मॉड्यूल को बाद में बताता हूँ, बोथ मॉड्यूल को बता देता हूँ। टाइम, वीकली तुमको टारगेट सेट करना है। वीकली मतलब मंडे के लिए वेट मत करो, आज से वीक 1 स्टार्ट हो गया। डेट वाइज करो, 7 डेज ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 डेज ले लो। कितने पेपर्स करने हैं फॉर मॉड्यूल, फॉर बोथ द मॉड्यूल्स? 3 पेपर करना है। एक पेपर तुमको प्रैक्टिकल रखना है, एक पेपर प्रैक्टिकल रखना है, प्रैक्टिकल रखना है। एक रखना है फ्रॉम मॉड्यूल 1, एक रखना है फ्रॉम मॉड्यूल 2, और एक जो है प्रैक्टिकल रखना है। ये अप्रोच रहेगा तुम्हारा वीकली। सेकंड वीक में तुम ये प्रैक्टिकल पेपर को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में तुम सीएफएम कर रहे हो, सेकंड वीक में तुम टैक्स लॉ करो, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव करो एवरी वीक सो दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। मॉड्यूल 1 से एक सब्जेक्ट उठाओ, मॉड्यूल 2 से सब्जेक्ट उठाओ। वीकली टारगेट रखो कि इस मॉड्यूल 1 से जो मैं पकड़ लो कंपनी लॉ कर रहा हूं, तो कंपनी लॉ में इस वीक में मैं तीन चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे टारगेट बनाओ, ठीक है। और इस वीकली तुम्हारे टारगेट, तुम्हारे जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करो। कंपनी लॉ इस वीक कर लिए, नेक्स्ट वीक तुमने जेआईजीएल कर लिया एंड सीएमएसएल कर लिया, ऐसे करके। एंड यहाँ पे तुमने टैक्स लॉ कर लिए फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार से तुमको टाइम जो है डिवाइड करना है। सिलेबस कितना कंप्लीट करे, अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट यू शुड कंप्लीट। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अगर आप ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करो, 80% सिलेबस कवर है तब भी तुम एलिजिबल हो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। 80% सिलेबस को फोकस करो। ऐसा नहीं करना कि कंपनी लो 100% करूंगा उसके बाद जेएजीएल पकड़ूंगा, नहीं। 80% करके सिलेबस के ऊपर फोकस्ड करो। 80% सिलेबस हो गया, काफी है। राइटिंग प्रैक्टिस पे जाओ, मॉक टेस्ट दो, ये सारे। एंड 80% कौन से चैप्टर्स करने हैं? वो चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर्स को करना है। 80% सिलेबस इसी प्रकार से तुमको कंप्लीट करना है। ये होगा तुम्हारा टाइम एंड अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट यू शुड कवर फॉर बोथ द मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, टाइम कितना दे। टाइम देखो तुम्हारा सिंपल चीज है, तुम्हारा भी वीकली होगा। वीकली तुम वीक 1 में तुम कंपनी लॉ करो एंड सीएफएम करो अगर तुम मॉड्यूल 1 दे रहे हो, ठीक है। वीकली वीकली चेंज करो एवरी वीक। नेक्स्ट वीक में तुमको जेआईजीएल करो एंड देन सीएफएम करो। तो एक प्रैक्टिकल पेपर जो है रोज रहेगा इफ यू आर गिविंग सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा टैक्स लॉ भी हो सकता है इफ यू आर गिविंग मॉड्यूल 2। इस प्रकार से तुम अपने मॉड्यूल्स को डिवाइड करो। एंड अमाउंट ऑफ सिलेबस तुम अगर 90% भी कवर कर रहे हो ना, इसी को प्रैक्टिस करो प्रॉपरली। 2-3 चैप्टर छूट रहे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 90% सिलेबस, यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि इसमें से अगर क्वेश्चन बन गए तो तुम आंसर कर पाओगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। 90% सिलेबस के साथ तुम रैंक लेकर आ सकते हो। दिस इज द रियलिटी। आई होप इट इज क्लियर, अंडरस्टूड। ये गाइडेंस तुमको कोई नहीं देगा, समझ लो।
तीन लेवल है प्रिपरेशन के दोस्तों, ये तुमको समझना है। प्रिपरेशन इज नॉट ऑल अबाउट कि लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, एक बार रिवीजन दे दिया, नो। पहले कंप्लीट योर लेक्चर्स, उसी के साथ साथ जैसे तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उस चैप्टर का तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। कहाँ से करना है, या तो तुमने टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखा है, ले सकते हो, हमारे भी अवेलेबल है। वरना अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं पूरा अपने आप ही करेंगे तो प्रीवियस टर्म के पेपर्स को निकालो, देखो इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस 4-5 अटेम्प्ट में, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में लाओ। अंडरस्टूड? तो ईच एंड एवर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए वैसे ही तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाद में तुम सोच रहे हो ना कि एक बार कंप्लीट कर लेते उसके बाद करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। चैप्टर कंप्लीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, चैप्टर कंप्लीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। अंडरस्टूड? वीकली राइटिंग प्रैक्टिस करो। देखो वीक में पकड़ लो तुमने दो चैप्टर कंपनी लॉ का कंप्लीट किया है, तो सैटरडे संडे बैठ के दो चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो भी प्रीवियस टर्म में पूछा गया है। इस प्रकार से कर सकते हो। वरना ऐसे भी कर सकते हो, अगर वीक में तुम्हारा बहुत ज्यादा चैप्टर्स है, पकड़ो 3 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर करके करो, एक एक चैप्टर का टेस्ट दो। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए फटाफट टेस्ट दे दो इवनिंग में, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए फटाफट टेस्ट दे दो इवनिंग में। इस प्रकार से तुमको कंप्लीट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस को एक साथ लेकर जाना है, वरना नहीं हो पाएगा। सिंपल बात। अगर तुम इतने एफर्ट्स लगा पा रहे हो ना दोस्तों, द कोर्स ओनली वांट्स लॉयलिटी फ्रॉम यू। तुम ऑनेस्टी के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। एंड ऑब्वियसली भगवान का तो तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। तो भगवान को रोज प्रे करना है कि सर जी मैं बहुत ज़्यादा जो है ऑनेस्ट हूँ अपने प्रिपरेशन के साथ, एंड आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, रोज अपने आप को बोलना है, रोज ये अज्यूम करना है अपने आप को, रोज बोलना है कि आई एम गोना क्रैक द एग्जामिनेशन, क्रैक द एग्जामिनेशन, क्रैक द एग्जामिनेशन। रात को सोना नहीं है जब तक तुम्हारा डेली टारगेट्स कंप्लीट ना हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। एंड रिवीजन, तो कंप्लीशन के बाद राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसा मत सोचो पहले कंप्लीशन करेंगे फिर रिवीजन करेंगे फिर राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं, कंप्लीशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस एक साथ जाएगा। रिवीजन मंथ होगा नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर का मंथ, ये देखो रिवीजन मंथ जो है ना वो होगा नवंबर प्लस दिसंबर। दिसंबर में तो तुम कोई राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं करोगे, 20 डेज रहेगा तुम्हारे पास, तुम एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में रिवाइज करके कंप्लीट कर लेना, ये तुम्हारा टारगेट रहेगा फॉर बोथ द मॉडल स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर तुमने एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो एग्जामिनेशन में बैठ के लिखोगे क्या, ये तुमको पूछना है। तो तुमको रियलिटी में आना है कि एग्जामिनेशन में होता क्या है। तुम सिर्फ अज्यूम नहीं कर सकते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुमको रियलिटी में आना है कि हाँ एग्जामिनेशन में तो यार मेरे को एक दिन भी हॉलीडे नहीं है, मेरे को तो 5-6 घंटे मिलेगा। अगर मैं आज सारा दिन लगाकर एक सब्जेक्ट का रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एग्जामिनेशन में 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के मैं कैसे रिवीजन कंप्लीट कर लूंगा। तो ये तुमको पहले से प्रैक्टिस करना है ना। यू आर इन अ वॉर, वॉर में सीधा वॉर की फील्ड में जाके बंदूक कैसे चलाएं वो तो तुम सोच नहीं सकते, तुमको पहले से घर में बैठ के प्रैक्टिस करना होगा बंदूक चलाना। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। आई होप इट इज क्लियर। तो ये इस प्रकार से प्लानिंग करो। अंडरस्टूड? इसके अलावा मैं तुमको जनरल कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ, सुनो अच्छे से। डोंट बी फियरफुल, बहुत ज़्यादा फियर में मत रहो। मेरा नंबर ले लो 878737453933009097। इनमें व्हाट्सएप मैसेज करो। अगर तुमको बहुत ज़्यादा बात करना है देन यू कैन कॉल, लेकिन उससे पहले तुमको अपॉइंटमेंट ले लेना होगा। व्हाट्सएप में मैसेज करो, पूछ लो कि सर कब मैं कॉल कर सकता हूँ, कॉल कर सकती हूँ, अकॉर्डिंगली मैं तुमको टाइम बता दूंगा, अकॉर्डिंगली तुम कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, बात करो, समझो। मैं कुछ दिन के लिए जो है अवेलेबल रहूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा विद योर प्लानिंग एंड एवरीथिंग। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनका प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एक प्लानिंग बनाओ, एक रफ प्लानिंग बनाओ, शेयर करो, मैं वहां पे टिप्पणी दे दूंगा, मैं तुमको एडवाइस कर दूंगा कि प्लानिंग सही है कि नहीं। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट कि तुम लोग ये सोच लो कि सी एस एग्जीक्यूटिव पास करना इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज वेरी इजी, provided that you are aggressively you are motivated to complete your syllabus, motivated to complete your writing practice, aggressively you want to crack the examination। aggressive होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? एंड देखो फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, ये सब कुछ बना रहेगा जब तक तुम एक सब्जेक्ट मतलब एक ग्रुप कम से कम क्लियर ना कर लो, ये हमेशा रहेगा। यू कांट एस्केप दैट। हर स्टूडेंट का सेम स्टोरी है, मैंने कल से लेकर आज तक बहुत सारे बच्चों का कॉल उठाया है, एंड हर स्टूडेंट का एक ये रोते मतलब स्टूडेंट्स रो देता है बात करते करते, सर सपोर्ट नहीं मिलता है वगैरह वगैरह, ये रहेगा। दिस इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट फील्ड को कैसे तोड़ना है, जब तुम एक बार ऊपर चले जाओगे ना फिर वो फील्ड टूट जाएगा। मतलब एक बार मॉड्यूल 1 निकाल लो या फिर मॉड्यूल 2 निकाल लो या फिर पूरा एग्जीक्यूटिव निकाल लो,
फुल सपोर्ट मिलेगा तुमको फैमिली के साथ, फैमिली तुमको भरोसा कर पाएगा, फैमिली भी, फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो, रिलेटिव्स का तो बात सुनना ही नहीं है, ठीक है, बाहर में जाए वो लोग, मेरे को कोई कुछ सुनना नहीं है, अपना 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 जो स्ट्रगल है अपने को पता है बस। रिलेटिव्स, मम्मी पापा को खुश रहो रखो, वो लोग जो बोल रहे हैं उनको भी समझाओ, वो लोग भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट कि दे आर ऑलवेज राइट, वो लोग भी गलत हो सकते हैं, तुमको, तुम अगर डेडिकेटेड हो ना, तुम अगर बहुत जान से चाहते हो इस सीएस बनने के लिए, देन यू विल बी एबल टू डू इट, तुम उसको समझा पाओगे, उनको समझा पाओगे, एंड खुद को भी समझाना है उससे पहले, मम्मी पापा को समझाने से पहले खुद को समझाओ कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द गाइडेंस दोस्तों। ये एक फ्रेमवर्क है, तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुमको बना के दे दूंगा टाइम टेबल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग है, बनाओ खुद से, बनाओ, शेयर करो मेरे साथ, यहाँ पे करेक्शन चाहिए मैं बताऊंगा तुमको, अंडरस्टूड, मैंने तुमको ढांचा दे दिया है कि कैसे तुमको टाइम डिवाइड करना है, अमाउंट ऑफ सिलेबस डिवाइड करना है, कैसे तुमको वीकली जाना है, कैसे कैसे करना है चीज़ें, क्योंकि मुझे पता नहीं कि तुमको तुम्हारा टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारा इजी सब्जेक्ट कौन सा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान इट। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इज इट ईजी? इट इज ईजी, ट्रस्ट मी, इट इज ईजी टू क्रैक सीएस एग्जीक्यूटिव, ट्रस्ट मी, ठीक है, प्रोवाइडेड तुमने ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन किया है। Honesty is very important in this course. If you are giving honesty, then you will be able to do it. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ एरियाज है जो मैंने टच नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं अपकमिंग वीडियोस में उनको कवर कर दूंगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं तुमको बता दूं कि हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह है ना वो स्टार्ट होने वाला है, इसका अलग से अनाउंसमेंट आएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, ये सब कुछ हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू, जय हिंद।